हम आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु जहां पे हम हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आज का ये दूसरा प्री क्वार्टर फाइनल आंध्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेला जाएगा। It's the second match of the day here at the Chinnaswamy Stadium. It's the pre-quarterfinals of the IDFC First Bank Syed Mushtaq Ali Trophy. This game is between Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. I've got the two captains here with me, Ricky Bui of Andhra Pradesh, Bhuvneshwar Kumar of Uttar Pradesh, and the match referee, ex-international player, India player, Iqbal Siddiqui. Ricky, if you would be kind enough to spin the coin. Heads is the call. And heads it is. Will bowl first. श्रीकर भरत के आंकड़े हैं। स्ट्राइक रेट, ये एक क्षेत्र है जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। And Ashwin Heba, he has been around for a number of years, 57 matches, strike rate of 131. There it is, spot on. You know, this is the specialty of Bhuvneshwar Kumar. Oh, nicely, smashed for a six. मिस टाइम, पहली विकेट भुवनेश्वर कुमार के नाम। Out for 4, 10 for 1, Andhra Pradesh. Oh, played off his legs for 4, drifted down the leg. Oh, nicely played off the back foot. The class written all over it. That's edged and will be 4. धीमी गति की मैं बात कर रहा था कि खराब लेंथ होगी तो नतीजा क्या होगा, रन जाएंगे उसके ऊपर। घुमाया है और फील्डर वहां मौजूद। Ashwin Hebbar goes for 11. Top edge. There is a fielder there and he takes it. 18 रन उन्होंने बनाया, 38, 3 विकेट के नुकसान पर आंध्र प्रदेश। Oh, good shot. Excellent timing. That'll be 4. जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाता हुआ, यहाँ गेंद रुकती नहीं है भाई। लाजवाब शॉट है भाई ये। What a shot this is! It's gone out of here. अच्छा कैच है, ये दूसरा कैच है करण शर्मा के लिए। आंध्र प्रदेश 73 for 4. Nicely. Oh, misfielding. शॉट खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से अक्रॉस द लाइन। हवा में फील्डर वहां मौजूद और एक कैच पकड़ा, बढ़िया कैच। Out for 19, 86 for 5, Andhra Pradesh. Look at that. Drifted down the leg side, pulled for 4. That's nicely played. That'll go for 6. जी हाँ, इसी की हम जिक्र कर रहे हैं कि वो जो रुख थोड़ा सा और आक्रामक होना चाहिए। मिल गया वो विकेट। जी हाँ, वो आप दबाव अपने ऊपर इतना बना लेते हैं। T Vijay, he's got to go for 16. Oh, that's cracked straight down the ground. Will be a 4. और इस वजह से मोहसिन वापस आएंगे। He'd be in. That's edged. Will be 4. बहुत बड़ा गैप है वहां पे। 6 रन। Have given themselves a fighting chance. That struck again extremely well. Will be a boundary. फिर कोशिश 2 की होगी। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और सही समय पे डाइव। देखने जरूर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो डाइव इतनी बढ़िया जगह लगाई थी। विकेट कीपर्स एंड that is grounded. Thank you. Freeze it there. Batter is diving. He's grounded within the popping crease. बिल्कुल सही निर्णय यहाँ पर। आखिरी 30 गेंदों में 67 रन बने हैं जी। जी हाँ, और उसी की वजह से आंध्र प्रदेश 156 रन 6 विकेट के नुकसान पर बोर्ड में लगाने में कामयाब रही। आंध्रा को आमंत्रित किया गया पहले बल्लेबाजी के लिए। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, लगातार विकेटें गिरती रही।
प्रसाद नॉट आउट रहे 34 रन बनाकर, और शशिकांत ने एक बढ़िया हाथ खेला। 23 रन उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में बनाए, और जिसकी वजह से 156 रन 6 विकेट के नुकसान पे आंध्रा ने बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। Well, the Uttar Pradesh batters all set to chase that target down. बल्लेबाजी की बात करें आर्यन जोहल 20वीं इनिंग 475 रन 133 का स्ट्राइक रेट। करण शर्मा जो अपना पहला मैच खेल रहे 2024-2025, मुश्ताक अली की बात करें 608 रन है उनके। स्टीफन्स 84 विकेट्स हैं इनके खाते में, 6.90 का बहुत बढ़िया इकॉनमी रेट माना जाएगा। बेस्ट 5 विकेट्स 10 रन देकर। बाएं हाथ के गेंदबाजों की हर समय मैं चर्चा करता हूं। रोहन तो बहुत ही बेहतरीन शॉट। Yeah, that's gone over the rope for 6. Oh, nicely played. Excellent shot. That'll get to the fence. Oh, misfield. And that'll get to the fence as well. Oh, good shot. But you've got to say another misfield there. That should have been saved as well. That'll be another boundary. Look at that. That's up in the air and it is out of the park. That's a look at that. Another long hop. Another maximum to Karan. ये पटाखा। ओह, शफल करके खेलने की कोशिश की करण शर्मा ने, अपना विकेट गंवा दिया। Gave a very good start to UP team, out on 48. अपील बाहरी किनारा, दूर से खेलने की कोशिश की। Back in the pavilion after scoring 19 is 71 for 2 now. Excellent shot, and that's the reason I was saying that these two are class players. In the air, another one. तीसरे विकेट का पतन नितेश राणा के रूप में। Gone! Just as we were talking about taking a wicket. Here's one. Priyam Garg out होकर पवेलियन लौटते हुए। And it's gone for 4. Nicely played. बेहतरीन शॉट, और ये उनकी खासियत। There's that wrist time we were talking about, and that goes for 6. Oh, एक और छक्का, और इसी के साथ समीर रिजवी आउट। Samir Rizvi goes for 12. 107 for 5. हवा में, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन, 6ठे विकेट का पतन। He goes for 1. 109 for 6. कुछ इस तरीके के सॉफ्ट डिसमिसल्स जिससे आपने अपने लिए दिक्कतें पैदा करनी। Terrific shot. That's Rinku Singh for you. ये वो काबिलियत जिसके बारे में अभी मैं कह रहा था कि इनके पास है। Another one. Take that. Over the wicket keeper. Found the gap. So very cool, so very composed is Rinku Singh, and that's exactly what you require. What a shot is that? You can add 4 more. You can add 4 more to that. And there it is. Uttar Pradesh have won this game. And they have made their way to the quarterfinal. What a game of cricket we have witnessed here. But hats off to this partnership. 48 of 19 deliveries. Rinku Singh and Vipraj really made it count here for Uttar Pradesh. 2 विकेट 20 रन देके अपने 4 ओवर में, और 27 रनों की पारी सिर्फ 8 गेंदों में। विवेक, सिर्फ 8 गेंदों में जिसने इस मैच का रुख ही बदल दिया है। एक अच्छी जीत, बेहतरीन क्रिकेट खेली। अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है उत्तर प्रदेश की टीम। So that's what's transpired here in this pre-quarter final. Andhra Pradesh were put into bat 156 in their 20 overs, and in reply
Uttar Pradesh 157 for 6 in 19 overs, and they won this game by 4 wickets and have entered the quarterfinal with this win against. कब नहीं होता रोज की आदतों का असर। साधारण से लगने वाली आदतें में भी कितनी शक्ति होती है, इसका एक उदाहरण हमारी रोज़मर्रा की आदतें होती है। ऐसी आदतें का होना इस बात का सूचक है कि पूरे दिन के कुछ हिस्से पर हमारा नियंत्रण होता है, अर्थात हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और अन्य काम से अलग हटकर उसके लिए एक स्थान बनाया जा सकता है। मेरे लिए रोजाना निम्न 3 कार्य अपरिहार्य है: गतिशीलता, स्थिरता, अंतर्दृष्टि। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। गतिशीलता, इसका अर्थ व्यायाम से लेकर योग तक कोई भी शारीरिक गतिविधियों से हो सकती है। लंबी सैर पर जाना और चहलकदमी करना भी इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि मैं शरीर गतिविधियों की शक्ति में बहुत यकीन रखता हूँ। नियमित गतिविधियाँ शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा और पोषण मिलता है, साथ ही हमारा मिजाज अच्छा रहता है, शरीर के दर्द और अकड़न में आराम मिलता है और रात को अच्छी नींद आती है। यानी आपका अच्छा महसूस करने के सारे कारण गतिशीलता में छिपे हैं। स्थिरता, किसी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसे समझना, कुछ ग्रहण करने और दोबारा से एक नई शुरुआत करने के लिए स्थिर होना आवश्यक है। मेरे लिए यह कुदरत के साथ मिलना और समय बिताना है, लंबी सैर है और योग है। साथ ही इस स्थिरता में एक छोटा हिस्सा अपने मन के भाव लिखने और ध्यान लगाने के लिए भी आरक्षित है। मुझे स्थिरता में ऊर्जा का अनुभव प्रकृति के सानिध्य होता है। आपका अनुभव इसमें अलग हो सकता है। यह समय मेरे लिए संगीत सुनने का भी है, क्योंकि संगीत मुझे व्यस्तता के क्षणों में अपना दिमाग शांत रखने में मदद करता है और मुझे स्वयं से जोड़ता है। लेकिन कभी कभी स्थिरता की इन पलों का लाभ मैं स्वयं की देखभाल करने में भी उठा लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार इन सभी को अपना खास ख्याल रखने के लिए भी उपयुक्त है। इसलिए मैं 1 से लेकर 3 तक उन चीज़ों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ का अभ्यास करने के लिए समय निकालना एक ऐसा शक्तिशाली बदलाव है जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ला सकता है। इससे दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। असल में जब हम कृतज्ञ, प्रसन्नता और वास्तविक आनंद का अनुभव करने लगते हैं तो नकारात्मक परिस्थितियों में रहना असंभव हो जाता है। जीवन में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब हमारा दिमाग उलझने लगता है, तब समझ नहीं आता कि पहले क्या जरूरी है। इस स्थिति में संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अवसरों पर स्थिरता का अभ्यास हमें स्वयं से जोड़ता है। अंतर्दृष्टि, कुछ नया सीखने या करने की इच्छा विकसित करें। इसकी शुरुआत किताब पढ़े, पॉडकास्ट सुने या किसी समझदार व्यक्ति की बातें सुनने से भी की जा सकती है। कभी कभी किसी किताब का कोई वाक्य या अंश मुझ पर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि मैं सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता हूँ। इससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा और कुछ बेहतर करने की ऊर्जा मिलती है। यही समय किसी विषय की गहराई में जानने के लिए उपयुक्त है। कोई नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसी गुरु से मिलकर कुछ नया सीखने या अपने मनपसंद का कोई भी काम करने, समय को समझने और अपने हिसाब से अपनी महत्वपूर्ण आदतें बनाने के लिए उपयुक्त है। इसका अभ्यास करने से हमें प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलती है। उन्हें एक कागज़ पर लिख लीजिए और दिमाग में बसा लीजिए। यह सब समय स्वयं के विकास का भी है और यही समय बदलाव का भी होता है। यह एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जिसके बल पर हम आगे बहुत बढ़ सकते हैं और स्वयं के लिए मजबूत नींव का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये सब इतना ही महत्वपूर्ण है तो सिर्फ 3 आदतें ही क्यों? असल में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है वो आप पर निर्भर करता है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आदतें बना सकते हैं, लेकिन यह 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है।